بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 4th کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ہاں جی، آج ہمارا لیکچر نمبر 4 ہے۔ ہم آج نیکسٹ لیسن پڑھیں گے سفر طائف۔ ہم جو ہے پریویس لیکچر میں ہمارا کمپلیٹ ہو چکا تھا، اس کے ہم نے کوشچن آنسر اور جو ایک آپشن تھا، آپشن والا کوشچن جو ہے وہ ہم نے کر لیا تھا۔ آج ہم نیکسٹ ہے ہمارے پاس باب چہارم کا والدین کے حقوق، آج ہم اس کو دیکھیں گے۔ سو آپ اپنی بکس کھول لیں، صفحہ نمبر 60 پہ ہے ہمارے پاس والدین کے حقوق۔ اچھے بچوں، کبھی آپ نے سوچا آج آپ جیسے بھی ہیں، جتنے بڑے ہیں، یہ سب کس طرح ممکن ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بعد سب سے زیادہ آپ کے والدین نے آپ کو پالنے اور بڑا کرنے میں تکلیفیں اٹھائی ہیں اور محنت کی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ ہم اسی طرح مطلب ٹھیک ٹھاک اچھے بھلے بھاگتے دوڑتے ہم جو ہیں وہ دنیا میں آگے، بلکہ یہاں تک پہنچانے میں ہمارے والدین کا بہت بڑا کردار ہے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ محنت کی ہے، ہم لوگوں کو کھلایا پلایا، ٹھیک ہے، ہمارے آرام کا خیال رکھا، جب ہم تکلیف میں ہوئے ہمیں میڈیسن دی، ہمارے مطلب خیال رکھا، سردیوں میں سردیوں سے بچایا، گرمیوں میں اس گرمی سے بچانے کے لیے ہماری احتیاطی تدابیر کی گئی، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہتے ہیں والدین میں سے بھی سب سے زیادہ محنت ماں کرتی ہے۔ والدین میں سب سے زیادہ محنت کون کرتا ہے؟ ماں کرتی ہے۔ ماں خود ہر طرح کی تکلیف اٹھا کر اپنی اولاد کو تکلیف سے بچاتی ہے، اور جب کبھی کسی بچے کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ سب سے پہلے ماں کو ہی آواز دیتا ہے۔ لگتا ہے ماں کی گود اور قربت میں ہر آرام اور ٹھنڈک ہے۔ ماں باپ آپ کو ہر طرح کا آرام دے کر بڑا کرتے کرتے بالآخر خود بوڑھے ہو جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ اولاد کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ماں باپ کے بڑے حقوق ہیں، اور اسی طرح استاد کے بھی بہت حقوق ہیں۔ ماں باپ اولاد کو پالتے پوستے ہیں اور ہر طرح سے ان کا خیال رکھتے ہیں، جبکہ استاد اس بچے کو پڑھا لکھا کر اس لائق بنا دیتے ہیں کہ وہ اچھی طرح زندگی گزار سکیں۔ لہٰذا والدین اور اساتذہ دونوں کی بہت عزت اور احترام کرنے کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، ٹھیک ہے۔ والدین تو ہیں اس قابل کہ مطلب ان کی عزت کی جائے، احترام کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ کا احترام بھی ہم سب پر فرض ہے۔ دیکھیں، ماں باپ ہمیں کھانا کھلاتے ہیں، ہماری رہائش کا مطلب خیال رکھتے ہیں، لیکن جو اساتذہ کرام ہیں وہ آپ کو اچھا انسان بناتے ہیں، آپ کو پڑھنا لکھنا، طور طریقے آداب، کس طرح ایک سوسائٹی میں بندہ موو کر سکتا ہے، آپ کو اس قابل بناتے ہیں کہ آپ آگے جا کر جب آپ بڑے ہو جائیں، جوان ہو جائیں، تو آپ کوئی فیلڈ اپنا سکیں، کوئی کام کر سکیں، کوئی روزگار حاصل کر سکیں اس پڑھائی سے، مطلب کوئی ہنر سیکھ سکیں۔ اور اس سلسلے میں جو بھی آپ کو کوئی چیز سکھاتا ہے وہ آپ کا استاد ہے، اور اساتذہ کی عزت جو ہے وہ عزت و احترام بہت ضروری ہے، اور قرآن پاک میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بار بار ارشاد فرمایا ہے۔ اور اسی سلسلے میں نبی کریم نے فرمایا، ماں کے پاؤں تلے جنت ہے۔ ماں کے احترام کے بارے میں چند اچھی باتیں پیش خدمت ہیں۔ خوش قسمت انسان وہ ہے جو ماں کا احترام کرتا ہے۔ ماں کی دل سے قدر کرو۔ نیکسٹ ہے، وہ ماں ہی تو تھی کہ جب میں گرتا تھا تو دوڑ کر آتی، مجھے اٹھاتی اور پیار کر کے میرا درد کم کر دیتی تھی۔ ماں آسمان کا گراں قدر تحفہ ہے، یعنی آسمان سے جو اللہ پاک نے انسانوں کے لیے سب سے اہم تحفہ، جو سب سے عظیم تحفہ ہے، وہ ماں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا ہے۔ وہ خوش قسمت ہے جو ماں کی نصیحت پر عمل کرتا ہے، یعنی وہ انسان بہت خوش قسمت ہے جو اپنی ماں کی نصیحت پر عمل کرتا ہے۔ دنیا کی تمام مسرتیں ماں کی دعا سے ملتی ہیں۔ اب بھی ہے بوڑھے والدین سے محبت۔ اولاد کو چاہیے کہ بڑھاپے میں والدین کے ساتھ نرمی اور شفقت کا برتاؤ کرے، جیسے تمہارے بچپن میں انہوں نے تمہیں شفقت اور محبت سے پالا تھا، تمہاری پرورش کی تھی۔ دنیا میں کیسا ہی عمل کیا جائے، والدین کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے انسان کو چاہیے کہ بارگاہ الہی میں ان پر فضل و رحمت کی دعا کرے، اور جب وہ انتقال کر جائیں تو ان کے لیے اصالہ ثواب کرے اور قرآنی آیات کی تلاوت کر کے ان کے درجات بلند ہونے کی دعا کرے، ٹھیک ہے۔ والدین کے بہت زیادہ حقوق ہیں۔ ہم بس بڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ماما آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، بابا آپ سمجھتے ہی نہیں ہیں، مطلب اس طرح کی باتیں ہم والدین سے کرتے ہیں، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ ہمیں ہر صورت میں اپنے والدین کی عزت کرنی چاہیے، سوائے
कुफर के, अगर वो हमें ये कहें कि आप इस्लाम से हट जाओ, इस बात के अलावा हमें अपने वालिदैन की हर बात माननी चाहिए, हर बात मानना हम पर फ़र्ज़ है। हमें चाहिए हम अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, उनका एहतराम करें, उनके हर आराम का, उनकी खुशी का ख्याल रखें, जिस चीज़ में वो राज़ी हों हम वो बात करें, और उनको बिल्कुल हम तंग ना करें। आजकल के बच्चे तो बस माँओं की यही शिकायत होती है कि बच्चा हमारी बात नहीं सुनता, बच्चा ये कर देता है, वो कर देता है, और ये क्यों है? क्योंकि आप जो हैं वो माँ बाप की बात जो है वो नहीं सुनते। नेक्स्ट देखते हैं वालिदैन के एहतराम के बारे में अरशाद ताला है और तर्जुमा, और तुम्हारे परवरदिगार ने इरशाद फरमाया है कि इसके सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ भलाई करते रहो। अगर इनमें से एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुँच जाए, यानी अगर माँ अगर ज़िंदा है या अगर बाप ज़िंदा है, उन दोनों में से अगर कोई बूढ़ा हो जाता है तो उनको उफ तक ना कहना और ना उन्हें झिड़कना, और उनसे बात अदब के साथ करना, और इज़्ज़ो न्याज से उनके आगे झुके रहो, और उनके हक़ में दुआ करो कि ए परवरदिगार, जैसा उन्होंने मुझे बचपन में शफ़क़त से पाला यानी परवरिश की मोहब्बत से, तो भी इनके हाल पर रहम फरमा, आमीन। रिश्तों की अहमियत। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत माँ के कदमों के नीचे और अल्लाह की रज़ा बाप की रज़ा में। किसी शख्स ने हुज़ूर से अर्ज़ किया, मेरे बेहतरीन दो सलूक का हक़दार कौन है? फरमाया, तुम्हारी माँ। इस शख्स ने पूछा, इसके बाद कौन? फरमाया, तुम्हारी माँ। इसने फिर पूछा कि इसके बाद कौन? फरमाया, तुम्हारी माँ। चौथी मरतबा यही सवाल पूछने पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा बाप। यहाँ तक हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट हम रीड आउट करेंगे। जी, दर्ज सवालात के जवाबात लिखिए। आपको पालने और बड़ा करने में अल्लाह की मदद के बाद सबसे ज़्यादा मेहनत किसकी है? आपने लिखना है, मुझे पालने और बड़ा करने में अल्लाह की मदद के बाद सबसे ज़्यादा मेहनत मेरे वालिदैन की है। जब किसी बच्चे को तकलीफ़ पहुंचती है तो वो किसको पुकारता है? जब किसी बच्चे को तकलीफ़ पहुंचती है तो वो अपनी माँ को पुकारता है। नंबर 3 है, माँ की गोद और कुर्बत बच्चे को क्या नेमत देती है? माँ की गोद और कुर्बत बच्चे को आराम और ठंडक देती है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, औलाद को बूढ़े माँ बाप के साथ कैसा सलूक करना चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर आपकी बुक में मौजूद है, इसको देख लेते हैं हम। बूढ़े वालिदैन से मोहब्बत। यहाँ से आपने लिखना है, औलाद को चाहिए कि सिर्फ अभी देखें, लिखना अभी आपने कॉपीज़ पे नहीं है, रिटर्न हम आपको PDF भेजेंगे, आपने वहाँ से जैसे वहाँ पे लिखा हुआ होगा वैसे आपने कॉपीज़ पे उतारना है। ये जस्ट आपको कॉम्प्रिहेंशन के लिए कि आपको समझ आए कि हमने इसमें से कितने कर लिए। औलाद को चाहिए कि बुढ़ापे में वालिदैन के साथ नरमी और शफ़क़त का बर्ताव करे, जैसे तुम्हारे बचपन में उन्होंने शफ़क़त और मोहब्बत से तुम्हारी परवरिश की थी। यहाँ तक करके फिर आगे है, वालिदैन के एहतराम के बारे में इरशाद बारी ताला है, ये तर्जुमा आप ये यहाँ तक पूरा इसमें आ जाएगा। अभी नेक्स्ट है हमारे पास वालिदैन, हदीस की रोशनी में वालिदैन का मकाम। वालिदैन की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है, उनकी नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है। नंबर 2 है, वालिदैन का फरमाबरदार जन्नती होगा और वालिदैन का नाफरमान जन्नत से इतनी दूर होगा कि इसकी खुशबू भी ना सूंघ पाएगा। तुमसे वालिदैन की खिदमत में कोई ख़ता हुई हो तो उनसे माफ़ी मांगो और अल्लाह से मग़फ़रत तलब करो। इनके साथ सिला रहमी करो, मोहब्बत, मेल जोल, खबरगिरी, मदद और हुक्म मानना। अगर वो रुपये पैसे से मोहताज हों तो उनका ख़र्च उठाओ। माँ बाप पर एहसान करना नफल नमाज, सदका, रोज़ा, हज और जहाज से भी बढ़कर है। एक शख्स ने हुज़ूर से पूछा, माँ बाप का हम पर क्या हक़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ बाप तेरी जन्नत भी हैं और दोज़ख भी। नाराज़ करोगे तो दोज़ख में जाओगे, खुश रखोगे तो जन्नत में जाओगे। जो औलाद अपने वालिदैन को मोहब्बत और मेहरबानी की नज़र से देखे तो हर नज़र पर एक हज का सवाब है। ये सब अहादीस है, ये हमें बात बताई गई है कि हमने किस तरह अपने वालिदैन का ख्याल रखना है, किस तरह उनको खुश रखना है, किस तरह उनकी खिदमत करनी है। पहला सवाल है, आपने इसी तरह लाइन लगानी है, ऊपर हेडिंग देनी है, लेसन का नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको पालने और बड़ा करने में अल्लाह की मदद के बाद सबसे ज़्यादा मेहनत किसकी है? हमें पालने और बड़ा करने में अल्लाह की मदद के बाद सबसे ज़्यादा मेहनत हमारे वालिदैन की है। जब किसी बच्चे को तकलीफ़ पहुंचती है तो वो किसको पुकारता है? इसका जवाब है, जब किसी बच्चे को तकलीफ़ पहुंचती है तो वो अपनी माँ को पुकारता है। नंबर 3 क्वेश्चन है, माँ की गोद और कुर्बत बच्चे को क्या नेमत देती है? माँ की गोद और कुर्बत बच्चे को आराम और ठंडक देती है। नेक्स्ट हमारा है,
औलाद को बूढ़े माँ बाप के साथ कैसा सलूक करना चाहिए? औलाद को चाहिए कि बुढ़ापे में वालिदैन के साथ नरमी और शफ़क़त का बर्ताव करे, जैसे तुम्हारे बचपन में उन्होंने शफ़क़त और मोहब्बत से तुम्हारी परवरिश की थी। वालिदैन के एहतराम में इरशाद बारी ताला है तर्जुमा, और तुम्हारे परवरदिगार ने इरशाद फरमाया है कि इसके सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ भलाई करते रहो। अगर इनमें से एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुँच जाएँ तो उनको उफ़ तक ना कहना और ना उन्हें झिड़कना और उनसे अदब से बात करना और इज़्ज़ो न्याज से उनके आगे झुके रहना और उनके हक़ में दुआ करो। ऐ परवरदिगार, जैसा उन्होंने मुझे बचपन में शफ़क़त से परवरिश किया है, तू भी उनके हाल पर रहम फरमा। क्या उस्ताद भी वालिदैन की तरह होते हैं? जी हाँ, उस्ताद भी वालिदैन की तरह होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माँ के कदमों तले जन्नत है, इसका क्या मतलब है? माँ के कदमों तले जन्नत है, इसका मतलब है कि जब हमसे माँ राज़ी होगी तो इस तरह अल्लाह भी हमसे राज़ी होगा। जैसे कि एक हदीस शरीफ में है, एक शख्स ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, माँ बाप का हम पर क्या हक़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ बाप तेरी जन्नत भी हैं, दोज़ख भी हैं। नाराज़ करोगे तो दोज़ख में जाओगे, खुश रखोगे तो जन्नत में जाओगे। जी हाँ क्लास, ये हमारा लेसन जो है वालिदैन का एहतराम कंप्लीट हो चुका है। इसको आपने बहुत अच्छा करके नीट कॉपीज़ पे उतारना है। हर क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद नीचे एंडिंग लाइन लगाएं, ठीक है? अच्छा करके क्लियर करके अपनी कॉपीज़ पे लिखना है। इसको साथ साथ प्रिपेयर करना है, याद करना है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।